Good morning, students. I, Suchitra Chaudhary, welcome you all in this video, Silicon and Phosphogens Part 3. In previous videos, we have discussed about the polymers, type of polymers, classification of inorganic polymers, etc. In today's class, we will discuss about the properties of inorganic polymers and basic characteristics of silicons. In general properties of inorganic polymers, there are some properties for inorganic polymers which we discuss here. With a few exceptions, inorganic polymers do not burn, they soften और melt at high temperature. अर्थात वे high temperature पे melt होते हैं, easily burn नहीं किए जा सकते हैं. These polymers have highly polar units, so dissolve in polar solvent. As we know, the principle polar dissolves to polar. Inorganic polymers having cross-linked structure with a high density of covalent bonds are generally stiffer, harder and more brittle than the organic polymer. अर्थात ये ऑर्गेनिक पॉलीमर्स की तुलना में ज़्यादा हार्ड होते हैं, ब्रिटल होते हैं, स्टिफ होते हैं क्योंकि इनमें क्रॉस लिंक्ड स्ट्रक्चर पाई जाती है. The chain segments between cross-link in polymers having cross-linked structure are usually short. जो सेगमेंट्स होते हैं क्रॉस लिंक स्ट्रक्चर में वे जनरली छोटे छोटे होते हैं. देयरफॉर दीज स्ट्रक्चर आर नॉट फ्लेक्सिबल इनफ टू परमिट इंटरेक्शन ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल. अर्थात ये बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल नहीं होते हैं. तो इनऑर्गेनिक पॉलीमर्स आर जनरली मच लेस डक्टाइल देन द ऑर्गेनिक पॉलीमर. अर्थात ये ऑर्गेनिक पॉलीमर की तुलना में डक्टाइल कम होते हैं, इनकी डक्टिलिटी प्रॉपर्टी कम होती है. For example, inorganic polymers such as polyethylene can extend by about 20% or more before breaking, whereas inorganic polymer break even when stretched by about 10%. अर्थात इनमें stretchability कम पाई जाती है. They possess lesser tensile strength as compared to organic polymer. Organic polymer की तुलना में इनमें tensile strength भी कम होती है. Inorganic polymer can usually be obtained in pure crystalline as well as in pure amorphous forms, whereas organic polymer on the other hand have partial crystalline and partial amorphous structure. So these are the basic difference between organic and inorganic polymers, and why we use inorganic polymer we may explain by these properties. We have to discuss two inorganic polymer in this chapter, silicons and phosphogens. Today we are starting the silicone type of polymers. So first of all we will discuss what is the silicones. Silicones are inorganic polymer consisting of silicon oxygen bond in skeleton. अर्थात ये सिलिकॉन से बनाए जाने वाले इनऑर्गेनिक पॉलीमर हैं. सिलिकॉन उसी वर्ग में पाया जाता है जिसमें कार्बन है. हम जानते हैं कि कार्बन के नीचे सिलिकॉन है. कार्बन में भी पॉलीमर्स बनाने की प्रॉपर्टी होती है जो कि ऑर्गेनिक पॉलीमर्स में हम पढ़ते हैं. इसी तरह से सिलिकॉन भी पॉलीमर बनाता है, लेकिन सिलिकॉन और कार्बन के पॉलीमर्स में डिफरेंस पाया जाता है. इसका बेसिक रीजन ये है कि सिलिकॉन के पास में वैकेंट डी ऑर्बिटल्स होते हैं. वैकेंट डी ऑर्बिटल की वजह से यह ऑक्सीजन जैसे क्रियाशील तत्व के साथ में डी पाई पी पाई बॉन्डिंग करके उदासीन प्रकृति के पॉलीमर्स का निर्माण कर सकता है. तो इस प्रकार से जो सिलिकॉन के पॉलीमर्स हैं वो कार्बन के पॉलीमर्स की तुलना में ज़्यादा स्टेबल होते हैं ड्यू टू वैकेंट डी ऑर्बिटल्स. These are polymeric organosilicons derivative containing silicon oxygen silicon linkage. अर्थात इसमें मेन जो लिंकेज है वो सिलिकॉन ऑक्सीजन सिलिकॉन के बीच में लिंकेज पाया जाता है. These contain alternate silicon and oxygen atoms in which silicon atoms are joined to ऑर्गेनिक ग्रुप्स. ये हम देख रहे हैं यहाँ पे सिलिकॉन एटम है, ये ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है, इस साइड भी ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ होता है, और ये सिलिकॉन एटम एल्किल ग्रुप्स के द्वारा भी जुड़ा हुआ रहता है. ऑर्गेनिक ग्रुप्स के द्वारा भी जुड़ा हुआ होता है. इट में बी एल्काइल ग्रुप और इट में बी फिनाइल ग्रुप. दीज आर ऑल्सो कॉल्ड पॉलीसिलॉक्सेन. ये जो यूनिट है इसको हम सिलॉक्सेन कहते हैं, जिसमें
सिलिकॉन 2 ऑक्सीजन के साथ में जुड़ा हुआ है और उसके 2 बॉन्ड सिलिकॉन ऑक्सीजन सिलिकॉन जो बॉन्ड होता है इसको हम सिलॉक्सेन कहते हैं। और जब एक से ज़्यादा सिलॉक्सेन यूनिट मिल जाती हैं एक साथ में तो पॉलीसिलॉक्सेन बनते हैं और पॉलीसिलॉक्सेन ही सिलिकॉन्स के नाम से जाने जाते हैं। तो इसे हम कहते हैं दीज आर ऑल्सो कॉल्ड पॉलीसिलॉक्सेन्स एंड दी हैव द जनरल फॉर्मूला R2SiO N। N इज नंबर ऑफ यूनिट्स। तो ये जो एटम है इसकी n नंबर जब मिल जाते हैं तो वो पॉलीसिलॉक्सेन कहलाते हैं। दिस वन यूनिट इज नॉन एज सिलॉक्सेन एंड जब ये बहुत सारी यूनिट्स आपस में ज्वाइन होती हैं तो इसको हम पॉलीसिलॉक्सेन कहते हैं और पॉलीसिलॉक्सेन ही सिलिकॉन्स के रूप में जाने जाते हैं। They have a wide variety of commercial use as fluids, oils, elastomers or we can say rubbers and resins. सिलिकॉन्स आर फेयरली एक्सपेंसिव बट हैव मैनी डिजायरेबल प्रॉपर्टी। हालांकि ये महंगा होता है लेकिन इसमें बहुत सारी डिजायरेबल प्रॉपर्टीज होती हैं जिसकी वजह से इसका यूज ज़्यादा किया जाता है। दीज में बी लीनियर साइक्लिक और क्रॉस लिंक पॉलीमर। दे हैव हाई थर्मल स्टेबिलिटी एंड आर ऑल्सो कॉल्ड हाई टेम्परेचर पॉलीमर्स। दिस इज द बेसिक concept of silicone कि what are the silicons. Now we will discuss the type of silicone polymers. There are silicone polymers are classified in two categories on different bases. One is the on the basis of structure and second base is the on the basis of industrial use. On the basis of structure, silicone polymers may be classified in two classes: linear silicone polymer and cyclic silicone polymer. Again, cyclic silicone polymers are divided into three more categories: cyclic trimer silicone polymer, cyclic tetrameric silicone polymer and cross-linked silicone polymer. In second process, on the basis of industrial use, silicone polymers are classified into four categories. These are silicone fluid or it may be say a silicone oil, silicone grease, silicone rubber and silicone resin. Now we will discuss all these silicone polymers one by one. First we have classify on the basis of structure. On the basis of structure we classified the silicone polymer in two categories: linear silicone polymer and cyclic silicone polymer. Linear silicone polymers are prepared by the hydrolysis of bifunctional dimethyl dichlorosilane. जो सिलिकॉन डेरिवेटिव्स बनते हैं वो बेसिकली एल्किल क्लोरोसिलेन डेरिवेटिव के हाइड्रोलाइसिस और कंडेंसेशन प्रोसेस से बनते हैं। तो जो लीनियर सिलिकॉन पॉलीमर है वे बेसिकली डाई मिथाइल डाइक्लोरोसिलेन की हाइड्रोलाइसिस के परिणामस्वरूप बनते हैं। जब इस कंपाउंड का हम हाइड्रोलाइसिस करते हैं तो एक चेन के रूप में ये आपस में आगे से आगे जुड़ता रहता है और इसे हम लीनियर सिलिकॉन पॉलीमर कहते हैं। तो दिस वन इज द लीनियर सिलिकॉन पॉलीमर। देन साइक्लिक सिलिकॉन पॉलीमर, दीज आर ऑफ थ्री टाइप्स: साइक्लिक ट्राइमर सिलिकॉन पॉलीमर जिसमें 3 सिलिकॉन यूनिट्स मिलकर के एक साइक्लिक स्ट्रक्चर बनाती हैं। दिस इज द साइक्लिक ट्राइमर सिलिकॉन पॉलीमर। इसमें 3 सिलेन डेरिवेटिव्स आपस में जुड़ते हैं। देन साइक्लिक टेट्रामेरिक सिलिकॉन पॉलीमर जिसमें 4 सिलिकॉन सिलॉक्सेन यूनिट्स जो हैं वो आपस में जॉइंट होती हैं तो इसलिए हम इसको टेट्रामेरिक सिलिकॉन डेरिवेटिव कहते हैं। देन क्रॉस लिंक्ड सिलिकॉन पॉलीमर, एक्सटेंसिवली क्रॉस लिंक्ड सिलिकॉन्स कैन बी प्रिपेयर्ड बाय द हाइड्रोलाइसिस ऑफ मिथाइल ट्राइक्लोरोसिलेन। जब यहाँ पर हमने क्या देखा था, लीनियर सिलिकॉन का बनते हैं जब डाइमिथाइल डाइक्लोरोसिलेन का हम हाइड्रोलाइसिस कराते हैं, लेकिन हम मिथाइल ट्राइक्लोरोसिलेन का जब हाइड्रोलाइसिस कराते हैं तो हमें क्रॉस लिंक्ड सिलिकॉन टाइप के पॉलीमर्स मिलते हैं। ये लीनियर सिलिकॉन है, दिस वन इज अनदर लीनियर सिलिकॉन। और जब दो लीनियर सिलिकॉन आपस में जुड़ जाते हैं तो इस बॉन्ड को हम क्रॉस लिंक बॉन्ड के नाम से जानते हैं। तो दीज आर द linear and cyclic silicone polymers. सेकेंड क्लासिफिकेशन है सिलिकॉन्स का ऑन द बेसिस ऑफ इंडस्ट्रियल यूज। इसके आधार पे हमने सिलिकॉन्स को 4 क्लासेस में क्लासिफाई किया था। फर्स्ट वन इज
silicone fluid, or we can say silicone oil. The silicone fluids are usually linear polysiloxane of 50 to 200 units having low molecular weight. अर्थात यह एक टाइप से लीनियर पॉलीसिलोक्सेन होता है। एक सिलोक्सेन में हमका फॉर्मूला हमने बताया था R2SiO, और जब उसके n मॉलिक्यूल मिल जाते हैं तो वो हो जाते हैं पॉलीसिलोक्सेन, और ये लीनियर पॉलीसिलोक्सेन है। When dialkyl dihydroxysilane, this one is the dialkyl dihydroxysilane, undergoes condensation with trialkyl monohydroxysilane. This is the trialkyl monohydroxysilane. अर्थात वन हेलो डेरिवेटिव की रिएक्शन जब टू हेलो डेरिवेटिव के साथ में पहले हम हाइड्रोलाइसिस कराएंगे तो वो हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव में कन्वर्ट हो जाएगा, और ये हाइड्रोक्सिल डेरिवेटिव सिलेन का जो होता है, इसको जब हम कंडेंसेशन करवाते हैं तो वाटर मॉलिक्यूल निकलता है, और ये कंडेंस्ड मॉलिक्यूल हमें मिलता है जिसको हम सिलिकॉन फ्लूइड के नाम से जानते हैं। ड्यू टू वाटर रिपेलेंट टेंडेंसी ऑफ सिलिकॉन फ्लूइड, जो सिलिकॉन फ्लूइड्स होते हैं इनकी मेन वाटर रिपेलेंट टेंडेंसी होती है, तो इट कैन बी यूज्ड एज वाटर रिपेलेंट मटेरियल इन वेदर इंडस्ट्री और पेपर इंडस्ट्री, एंड इट इज यूज्ड एज एंटी फॉर्मिंग एजेंट ऑल्सो। Their complete inertness and non-toxicity allows them to be used in cooking oils. इसीलिए हम इसको सिलिकॉन ऑयल के रूप में भी जानते हैं, क्योंकि इसकी नॉन टॉक्सिक और इनर्टनेस की वजह से हम इसको कुकिंग ऑयल में भी यूज कर सकते हैं। सेकेंड सिलिकॉन पॉलीमर है सिलिकॉन ग्रीज। तो द ग्रीजेज आर प्रिपेयर्ड फ्रॉम द सिलिकॉन फ्लूइड्स। जो सिलिकॉन फ्लूइड्स हैं उन्हीं से हम सिलिकॉन ग्रीज तैयार करते हैं बाय यूजिंग फीलर्स सच एज सिलिका, कार्बन ब्लैक एंड लिथियम सोप। अर्थात जब हम सिलिकॉन फ्लूइड में फीलर्स को यूज डाल करके और फीलर्स के रूप में हम सिलिका, कार्बन ब्लैक और लिथियम सोप का यूज करते हैं तो हमें सिलिकॉन ग्रीज मिलता है। ग्रीज विथ लिथियम सोप फीलर कैन फंक्शन फ्रॉम -75 डिग्री सेल्सियस टू 150 डिग्री सेल्सियस। अर्थात जब हम लिथियम सोप को फिलर के रूप में यूज करते हैं तो हमें जो सिलिकॉन ग्रीज मिलता है उसको हम -75 से 150 डिग्री सेल्सियस तक यूज कर सकते हैं। जो सिलिकॉन ग्रीज होता है ये एक इंडस्ट्रियल इंपॉर्टेंस का लिक्विड प्रोडक्ट है, और इसका निर्माण रेखीय सिलोक्सेन, जो लीनियर पॉलीसिलोक्सेन है, उन्हीं की द्वारा हम फिलर मिला करके इसको यूज करते हैं। फिलर के रूप में हमने सिलिका, कार्बन ब्लैक और लिथियम सोप मिला है। और जब ग्रीज विथ कार्बन ब्लैक फिलर आर हाईली हीट, जब हम कार्बन ब्लैक को फिलर के रूप में यूज करते हैं तो these are the highly resistant and are used in high temperature conveyor and oven doors. Silicone grease thickened with aryl urea compound can function even at 260 डिग्री सेल्सियस। इसे हम लुब्रिकेंट के रूप में भी प्रयोग लेते हैं, और ये अधिक चिकनाहट और कम घर्षण रखती है। इसे पंखे, बेरिंग, सॉफ्ट इत्यादि में हम यूज कर सकते हैं। थर्ड जो सिलिकॉन पॉलीमर है हमारा है सिलिकॉन रबर। Silicone rubber consists of cross-linked type silicones जो कि हम बनाते हैं डाइमेथाइल सिलिकॉन पॉलीमर्स, जिसे हम कह सकते हैं डाइमेथाइल सिलिकॉन पॉलीमर। उसका हम सिलिका और जिंक ऑक्साइड एज ए फिलर के रूप में यूज करते हैं, और देन उसका वल्कनाइजेशन करते हैं बेंजोइल परऑक्साइड के साथ में, तो हमें सिलिकॉन रबर प्राप्त होता है। अर्थात सिलिकॉन रबर प्राप्त करने के लिए हम क्या करते हैं, लीनियर पॉलीसिलोक्सेन पॉलीमर को सिलिका और जिंक ऑक्साइड फिलर के साथ में और उसका वल्कनाइजेशन कर दें बेंजोइल परऑक्साइड के साथ में, तो हमें जो प्रोडक्ट मिलेगा उसे हम सिलिकॉन रबर कहते हैं। The mixture is heated in absence of air at 150 degree Celsius. Silicone rubber are especially valuable since they retain their elasticity over a range of temperature and are resistant to oil. ये यहाँ पर लीनियर पॉलीसिलोक्सेन है, इसको हमने फिलर के साथ में और वल्कनाइजेशन किया बेंजोइल परऑक्साइड के साथ में, तो ये जो प्रोडक्ट बनता है क्रॉसलिंक पॉलर, इसको हम सिलिकॉन रबर कहते हैं। They are used in sealing joints, steams of jet aircraft, and insulating electric parts like transistor which cannot be heated.
तो दिस वन इज द सिलिकॉन रबर। नेक्स्ट है सिलिकॉन रेजिन। Silicone resins are solvent solution of branched chain siloxane containing residual hydroxyl groups. These are prepared by hydrolyzing and condensing mixture of dialkyl dichlorosilane or alkyl trichlorosilane under carefully controlled condition. यहाँ पे हमने क्या क्या यूज लिया है? डाइएल्किल डाइक्लोरोसिलेन। डाइएल्किल डाइक्लोरोसिलेन का जब हाइड्रोलाइसिस करेंगे तो हमें मिलेगा डाईहाइड्रोक्सिल डाईएल्किल सिलेन। इसी तरह से सेकंड प्रोडक्ट हमने लिया है एल्किल ट्राइक्लोरोसिलेन। ट्राइक्लोरो को जब हाइड्रोलाइसिस करेंगे तो ट्राईहाइड्रोक्सी डेरिवेटिव, तो दिस वन इज द ट्राईहाइड्रोक्सी डेरिवेटिव। जब ट्राइक्लोरो डेरिवेटिव और डाइक्लोरो डेरिवेटिव का हाइड्रोलाइसिस करेंगे और उसका कंडेंसेशन करेंगे तो जो प्रोडक्ट हमें मिलेगा उसमें कंट्रोल्ड कंडीशन में इसे हम सिलिकॉन रेजिन्स कहते हैं। यहाँ पर ये जो थर्ड हाइड्रोक्सिल ग्रुप है ये आपस में क्रिया करके क्रॉस लिंक बॉन्ड बनाता है। तो दिस वन इज द सिलिकॉन रेजिन। देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ सिलिकॉन रेजिन्स लाइक कोटिंग रेजिन्स, laminating resins, releasing resins, water repellent resins and electrical resins. These are stable to heat, water repellent and have good electrical conductivity and as well as chemical inertness and weather resistance. तो इसकी इन्हीं सब प्रॉपर्टीज की वजह से सिलिकॉन रेजिन्स आर यूज्ड फॉर इंसुलेटिंग मटेरियल एंड एज नॉन स्टिकिंग कोटिंग फॉर डोमेस्टिक कुकिंग वेयर। तो दीज आर द सिलिकॉन पॉलीमर्स। थैंक यू। नेक्स्ट क्लास में हम प्रिपरेशन ऑफ सिलिकॉन पॉलीमर्स एंड प्रॉपर्टीज ऑफ सिलिकॉन पॉलीमर्स के बारे में स्टडी करेंगे।